So good morning, all of you, beta. Today we are going to learn the entire topic from the beginning. Okay. So first of all, what is a Python? Okay, Python is a cross-platform programming language. Okay, which means that it can be run on the multiple platform like Windows, Mac operating system, Linux, Fedora, and so many. And it can be used by the it can be ported to the multiple platforms also, like Java, .NET virtual machines. Okay, so why are we doing programming? Actually, we are doing programming for to complete or fulfill a specific task. That task must be fulfilled by the machine, not a human. Okay, so when we want a task to perform by a machine, actually we have to code that problem, and the code will convert it into machine language, and the machine will understand that language, and later it will perform that specific language. Let's suppose I want to print a paper. So a paper, it means it is printed by a printer. A printer is a machine, and I can't directly instruct the machine printer that to print the specific page. So what should I do? I write some specific code. That code is translated in the machine language by the help of operating system, application software also. And then after, the operating system instructs the hardware to perform a specific task. Okay, so that's the whole process. So a language is actually used to code any specific problem. Okay, so what is Python? Python is one of the language that is used to do that. Okay, so the specialty, or we can say there's a special facility of Python, is that it is a cross-platform programming language. The word here, cross-platform, means the language is platform independent. The both are same, cross platform and platform independent. दोनों का मतलब एक ही होता है. It means I can run the program of Python in my computer as well as in my mobile, as well as in my iPad or any other device that supports coding. Okay, so it means Python can be run in different type of platform also. Okay, so platform may be a hardware perspective, or it may be a software operating system perspective. Okay, as you know, we have Windows, Mac operating system, okay, Linux, Unix, Fedora, and more than. तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इजीली अडॉप्टेबल है और इजीली वर्क कर जाता है. That's why we are saying that it is a cross-platform language. Okay, and also it supports some of the virtual machines also. What are the virtual machine? Likewise, let's suppose I have a computer with Windows operating system, but somehow I want to run some Linux programs also. Linux is also operating system, so I want to install Linux also. So I can install some softwares that create a virtual machine for Linux. Okay, so we can say that it is a machine inside a machine, operating system in operating system. Okay, so and the last one is it is free and open source. Okay, it is free. Python is free and open source. It means we can change the Python codes according to our need. जो हमारी नीड है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के कोडिंग को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. लेट्स सपोज you have written you have learned the printing statement. Let's suppose I want to change that print statement as when I write print, and it will actually instruct the printer to print a paper. Okay, so that means that I have changed the nature of the printing statement. So it can be done in Python. So that's why it is an open source software. It means we can change the entire coding of Python according to our need. Okay, so very first, what is Python keywords? Okay, what is Python keyword? Actually, when we are जब हम बच्चे थे तो हमने भी क्या, जैसे क ख ग घ सीखा हमने, अल्फाबेट सीखे हमने, वर्ड्स सीखे हमने. ओके, सो व्हेन आई आस्क यू, लेट्स सपोज साइकिल, तो आपके दिमाग में एक सीधी सी इमेज आ जाएगी, एक साइकिल की इमेज आ जाएगी. व्हेन आई राइट, जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको पेंसिल, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ आपको बुक, तो एक्चुअली में क्या हुआ, इनिशियली आपके जो बचपन से ही आपको क्या सिखाया गया कि एक वर्ड है स्पेसिफिक, उस वर्ड का मतलब ये. सो यू रिलेट दैट वर्ड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. आपने स्पेसिफिक एंड रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट को उस वर्ड से क्या कर लिया,
रिलेट कर दिया। ओके, जैसे एप्पल बोला तो आपने एक फ्रूट था, है ना, तो एक फ्रूट को आपने उससे रिलेट कर दिया कि अब एप्पल बोला इसका मतलब इस फ्रूट की बात हो रही है। ओके, अब फ्रूट बोला, ये फ्रूट ऑल्सो वर्ड, तो फ्रूट का मतलब क्या होता है, जो खाने के लिए होते हैं, तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो फूड भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। तो अपने हमने क्या किया, इन सभी वर्ड्स के लेकर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को क्या किया, कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही पाइथन के अंदर भी जो बेसिक नीड्स है हमारी, उस बेसिक नीड्स के लिए क्या बनाए गए थे, कीवर्ड्स बनाए गए हैं, एंड दीज कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन। ये सारे के सारे क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, सो यू कांट चेंज द नेम ऑफ एप्पल टू वो बनाना, आप एप्पल को बनाना नहीं कर सकते। ओके, आप क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिजर्व्ड है, किसके लिए, उस फ्रूट के लिए रिजर्व्ड हो गया। ओके, सो अब आप इसको चेंज कर दोगे, जैसे किसी ने बोल दिया पाइन एप्पल। ओके, सो अब वो एक्चुअली एप्पल नहीं है, वो पाइन एप्पल है, इट मीन्स ए न्यू फ्रूट, एक दूसरा फ्रूट आ गया। ओके, तो अब पाइनएप्पल बोलेंगे तो आप कभी भी एप्पल को उससे रिलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि दिस इज द कीवर्ड एंड दिस इज रिलेट टू दिस ऑब्जेक्ट। डन। So as well as in the programming language, the keywords are actually reserved words in Python that can be helpful for the programmer, that helps the programmer. Okay, क्योंकि जैसे हमने रियल वर्ल्ड के अंदर हमने एप्पल को एक फ्रूट से रिलेट किया। ओके, सो फ्रूट जो है वो एक्चुअली एक मशीन समझ लीजिए आप, और जो वर्ड आपने लिखा है वो एक कोड समझ लीजिए। अब कोड और मशीन के बीच में जो इंटर रिलेशन होगा वो कैसे होगा, वो होगा मशीन कोड से। ओके, जो पाइथन के डेवलपर है वॉन ग्यूडोरेशम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन वर्ड्स के पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने क्या किया, मशीन लैंग्वेज उनके साथ अटैच कर दी। सो मशीन एक्चुअली रीडिंग द मशीन कोड व्हेन यू आर राइटिंग अ कीवर्ड। Okay, so I think it is clear to you all that what is a keyword. Okay, so the simplest definition of the keyword is keywords are the reserved words in Python. Done. We cannot use a keyword as a variable name, function name, as an identifier. Okay, हम use नहीं कर सकते, but they can be, they are used to define the syntax and structure of Python language. We can use them, but not as a name of variable, as a function name, as an identifier, anything. यूजर डिफाइंड नेम जो भी होते हैं उनकी जगह पर हम किसका यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस दैट देयर आर 33 कीवर्ड्स इन पाइथन 3.7। पाइथन 3.7 में कितने कीवर्ड्स हैं, टोटल 33 कीवर्ड्स हैं। और इससे भी और भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर आर 3 कीवर्ड्स, there are only 3 keywords in the entire list of keywords, in the 33 keywords, that have the first letter is capital, which is true, false and none. Which is true T capital रहेगा, false F capital रहेगा, और none में N capital रहेगा. So these are the 3 words, or you can say that keywords have such format. Otherwise all are in small case. बाकी सभी जो हैं वो सब क्या होते हैं, स्मॉल केस में होते हैं। डन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या करें कि जैसे 33 है, आपको 33 याद रखने की जरूरत नहीं है। 33 के अंदर से आप 20 से 25 जो कीवर्ड्स हैं जो हम यूज करेंगे, जैसे हमने अभी तक कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए, वी हैव यूज्ड ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, डेफ, हमने इसके अलावा इफ, एल्स, फॉर, ये हमने यूज किया, रिटर्न, ये हमने अभी तक यूज किया, इन, इज, ये भी हमने यूज किया, नॉट भी यूज किया हमने। तो ये कुछ कीवर्ड्स तो हम यूज कर चुके और कुछ कीवर्ड्स हम यूज करेंगे। तो अमंग द 33 वी आर एक्चुअली रीडिंग ऑल द ऑलमोस्ट 25 टू 30, 25 से लेकर 30 के आसपास हम जो कीवर्ड्स हैं वो हम ज्यादा कंसिडर करेंगे। ओके, चलिए, so I think it is clear to all of you that what is a keyword. Okay, so the next thing is Python identifier. An identifier is a name given to entities like class, function, variables. Okay, so class अभी discuss नहीं हुआ है, we have discussed functions and variables. Okay, तो जब user defined name की बात की जाए then actually we are talking about identifiers. हम किसकी बात कर रहे हैं, identifiers की बात कर रहे हैं। Okay, so what the identifiers do, it actually help us to differentiate one entity from another. Actually this will help us, as let's suppose I have
explain you earlier an example that maybe there are two boys, है ना, दो सिबलिंग्स हैं, दो बच्चे हैं, और दोनों के दोनों क्या है, जुड़वा हो गए. अब वो जुड़वा बच्चे हैं, उनको हमको डिफरेंशिएट करना है. लेट्स सपोज वन एक ने क्राइम किया है, तो हमको कैसे पता चलेगा किस बच्चे ने क्राइम किया है? सो फॉर दैट वी हैव एक्चुअली गिवन अ नेम फ्रॉम द बर्थ ऑफ द, उन दोनों बच्चों की जो बर्थ से हमने क्या दे दिया, उनको एक नाम दे दिया, और नाम से क्या किया हमने, उनको डिफरेंशिएट कर दिया. ओके, तो हमने क्या किया, नाम दिया. लेट्स सपोज वी हैव अ वैल्यू 10, we have a value 10 and we have to use that value, and मैं ये भी चाहता हूं कि वैल्यू चेंज भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसका एक कंटेनर यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? कंटेनर यूज करेंगे. कंटेनर इट मींस वेरिएबल. दिस इज द वेरिएबल. ओके, एंड दिस नेम इज कॉल्ड दिस नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर. ओके, सो आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल्स के नाम होते हैं, फंक्शंस के नाम होते हैं. इट मींस यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं. ये यूजर अपनी तरफ से जो भी लिखता है, जो कीवर्ड्स नहीं होते, वो आइडेंटिफायर हो जाते हैं. It helps to differentiate one entity from another. Okay, entity differentiate कर रही है, यहाँ पर x क्या एक वेरिएबल के रूप में है, और क्या यूज कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू जो 10 वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रूल्स ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर्स. ओके, दीज आर सेम रूल्स फॉर द वेरिएबल्स आल्सो, फॉर राइटिंग द फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम और आइडेंटिफायर. ओके, तीनों एक ही बात है. तो ये जो रूल्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रूल्स क्या रहेंगे? रूल्स सबसे इजी है. रूल्स में क्या ध्यान रखना है कि यू कैन यूज अल्फाबेट्स. ओके, you can use A to Z, you can use A to Z. Okay, you can use small a to Z, capital A to Z, and digits. Okay, digits यूज कर सकते हो नाम देने के लिए, लोअर केस अपर केस में यूज कर सकते हैं, और एक अंडरस्कोर करके आप एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, नाम दे सकते हैं. बट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट you can't start the name of an identifier, or we can say that variable or function, with a digit. You can include a digit after the first character. पहले कैरेक्टर के बाद ही आप एक इंटीजर नंबर या डिजिट नंबर लिख सकते हैं, लेकिन you can't include the digit in the starting. वेरिएबल का नाम किससे स्टार्ट नहीं होगा? डिजिट से. लेट्स सपोज मैंने राइट किया है 9 मैं लिखा 9 सम. Invalid है. Why it is invalid? Because digits are starting, this identifier starts from digit, and which is invalid for identifier. Okay, so what if I write underscore help? What is it? Is right or not? It is valid, because मैंने ये कहा है कि डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. इट मींस इन तीनों में से किसी से भी स्टार्ट हो सकता है. इट मींस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर, you can start from a number or from an alphabet, lowercase or uppercase. Done. Third one is you can't use keywords to write identifiers. आप identifiers को लिखने के लिए क्या नहीं यूज कर सकते हैं? कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते. ओके, ये वैलिड नहीं होगा, बिकॉज कीवर्ड्स, मैंने पहले डेफिनेशन दे दी, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स. कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं, और रिजर्व वर्ड्स को वेरिएबल के रूप में बनाया नहीं जा सकता है. ओके, क्लियर हो गया? ओके, क्लियर हो गया सभी को? सो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स: फर्स्ट, यू कैन यूज अल्फाबेट्स, लोअर केस, अपर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. सेकेंड, you cannot use digits for the starting of identifier. थर्ड, यू कैन यूज अंडरस्कोर. आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, सिंपल अंडरस्कोर वैलिड है. आप कह सकते हैं कि जैसे हेल्प अंडरस्कोर अस, कुछ भी. आप मल्टीपल वर्ड्स को अटैच करने के लिए अंडरस्कोर बीच में यूज में ले सकते हैं. ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि होता क्या है, देखिए ऐसे लिखते हैं हेल्प अस, तो रीडिंग में प्रॉब्लम आती है. तो अंडरस्कोर लिखा हुआ तो दोनों में स्पेस भी हो गया और दोनों कनेक्ट भी हो गए, इसलिए अंडरस्कोर का यूज किया जाता है. इसके अलावा जितने भी स्पेशल सिंबल है वो यूज में नहीं लिया जा सकता. जैसे आपने ले लिया डॉलर, तो ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा. आपने ट्रम्प ले लिया, नॉट ले लिया, आपने इक्वल टू ले लिया, कुछ भी ना, कोई ऑपरेटर, सब कुछ इनवैलिड है. आइडेंटिफायर नेमिंग के लिए, नेमिंग कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रूल्स है मैंने बताया उसे ही फॉलो करना. ओके, क्लियर? So the next one is
यस लेंथ हो सकती है, लेंथ का आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली सी लैंग्वेज जो थी उसमें था 32 कैरेक्टर्स लिमिट थी, बट पाइथन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है ना। पाइथन में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, 32 कैरेक्टर तक आप लिख दीजिए, बाकी इतने बड़े नेम हमें यूज भी नहीं आते, ठीक है ना। आप सिंपली आप जो नेम लिखेंगे वो ऑलमोस्ट 10 कैरेक्टर्स 20 कैरेक्टर से ज्यादा क्या होना है, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, है ना। और पाइथन 3.7 का जहां तक मुझे पता है वो 32 तक एक्सेप्ट कर लेता है, ओके। बट आपको इतनी नीड भी नहीं है। नीड है क्या इसकी? नहीं, नीड नहीं है हमें, 32 कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी हैव लर्न, फर्स्ट पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ओके। इट मींस it the name like x and x दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों नेम क्या है? अलग अलग है। दोनों नेम एक नहीं है। समझ में आया आपको? क्लियर? पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इट इज फ्री ओपन सोर्स लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। डन? ओके। हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसमें एक ये है कि वी हैव टू यूज आइडेंटिफायर्स नेम that makes a sense. It means let's suppose मुझे कोई काउंटिंग रखनी है तो मैंने लिखा C और एक मैंने लिखा काउंट। सो दोनों में से फेमिलियर कौन सा होगा जो रिलेट करेगा हमारे टास्क को? इट इज काउंट, नॉट द C, बिकॉज C से और भी नेम्स निकल जाते हैं, लेकिन काउंट से डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा कि दिस काउंट वेरिएबल इज इंडिकेटिंग सम वेरिएबल विच इज अ काउंट ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। किसी ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग, मतलब काउंटिंग नंबर्स कहीं ना कहीं मिलेगा हमको, ओके। सो ऐसे हम कर सकते हैं ना। तो जो भी नाम देंगे क्या देंगे? ये भी है जो नेमिंग कन्वेंशन या कह सकते हैं रूल्स फॉर मेकिंग आइडेंटिफायर, उसमें ये भी है कि यू हैव टू गिव अ नेम ऑफ आइडेंटिफायर व्हिच मेक्स अ सेंस, ओके। क्लियर? नेक्स्ट इज, क्लियर हो गया सभी को? ओके। So the next is Python statement. What is a statement? What is indentation? And what is a comment? Okay. So the first one is statement. Everything you write in the Python, the every line of एक लाइन जो होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? स्टेटमेंट कहलाती है। Everything you write in a code or in a program, it is a statement. Okay, so we can say that in a statement instructions that a Python interpreter can execute are called statements. जितने भी कोड्स हैं जिन्हें एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंस्ट्रक्शंस जितने भी हैं वो सब कहलाएंगे स्टेटमेंट्स कहलाएंगे, ओके। सो which lines or we can say that which code is not a statement? Comments are not a statement. Comments statement नहीं होते। क्यों नहीं होते? Because they can't execute by the using of interpreter. Interpreter उन्हें execute नहीं कर सकता। Done? So there if पूरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ दो ही चीजें आपको देखने को मिलेगी, one is a statement, second is a comment, okay? तो जो भी लाइन लिखी हुई होंगी वो या तो स्टेटमेंट होगी या वो क्या होंगी? कमेंट होगी, ओके। क्लियर? जैसे लेट्स सपोज हमने लिखा है a equals to 5, so this is an statement, but I write hash a equals to 5, this is not a statement, okay, because it is a comment. It is a comment and it is a statement, okay. This is the basic difference between a comment and a statement, okay. Okay, next is multi-line statement. What is a multi-line statement? Let's suppose मेरे पास कोई स्टेटमेंट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट की लेंथ ज्यादा है, तो अब लेंथ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में लिखने में हमको क्या होती है? रीडिंग कैपेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रीडिंग मिसमैच होता है। क्लियर ना? जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे मैं लिखा 1 1 2 3 4 एंड अपन लिखते जा रहे हैं और यहाँ तक हम जैसे 100 तक लिख रहे हैं, तो एक लाइन 100 तक चल रही है, इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूँ a equals to 1 plus 2 plus 3 plus 4 dash plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 dash, ऐसे करके। तो रीडिंग कैपेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। रीडिंग प्रोसेस क्या हो गई? इजी हो गया हमारे लिए। तो ऐसे करके मल्टीपल लाइन का यूज भी किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट विच इज इन मोर देन वन लाइन, जो एक से ज्यादा लाइन में हो सकता है। इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ब्रैकेट्स का भी यूज
कर सकते हैं। ओके, कर्ली ब्रैकेट पैरेंथेसिस का भी यूज कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं और कर्ली ब्रेसेस का यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ओके, so the next is indentation. Okay, first we learn what is a comment. Okay, first we learn what is a comment, so relate हो जाएगा. Comments are very important while writing a program. Okay, they describe what is going on inside a program, so that a person looking at a source code does not have too hard time figuring out what is written inside the code. Okay, let's suppose we have write a specific block of code and we didn't write any comments on it, so later the another person, maybe another programmer, when he read that program, so she have to, या उनको क्या करना पड़ेगा, उनको पूरा प्रोग्राम पढ़ना ही होगा. क्यों पढ़ना होगा? बिकॉज देर इज नो टैगलाइन, नो हेडिंग ऑन दैट प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में अगर पहले से लिखा हो कि दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू फॉर डूइंग सम, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, ऐसे कुछ नोट्स लिखे हुए ऊपर, तो जो प्रोग्रामर होगा उसको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड किस लिए लिखा हुआ है. सो इट मीन्स comments are very important, okay, while writing a program. Done. So we might forget the key details of the program. Just let's suppose we are going to write a game. Okay, so अब गेम में तो बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, फायरिंग होती है, डेथ भी होती है, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं वहां पर. तो इतने सारे मॉड्यूल्स के अंदर लेट्स सपोज प्रोग्रामर्स 4 से 5 प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो अगर वहां कमेंट्स नहीं लिखे होंगे तो लेट्स सपोज समवन इज हैंडलिंग द ऑडियो, जो म्यूजिक है उसको हैंडल कर रहा है, वो समवन ग्राफिक्स पे ध्यान दे रहा है, एक है जो कोडिंग पे ध्यान दे रहा है, एक है जो इनको इंटर रिलेट कर रहा है, एक है उसकी कनेक्टिविटी, जो सर्वर से कनेक्टिविटी उसको इंश्योर कर रहा है. तो यहाँ पर जब मल्टीपल पर्सन्स इंक्लूड हो जाते हैं इन अ सिंगल प्रोग्राम, सो वहां पर अगर कमेंट्स नहीं लिखे होंगे तो वो एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पाएंगे और वो प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होना है. अगर प्रोग्राम बन भी जाता है तो लेटर जब मेंटेनेंस होगा, प्रोग्राम के अंदर अपडेशन होंगे, तो वहां पर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो हाउ वी कैन राइट अ कमेंट? सिंपल है, हैश कीवर्ड का हैश आपको यूज लेना है. आपको सिंपली क्या करना है, हैश यूज करना है. दिस इज फॉर सिंगल लाइन कमेंट. ये क्या है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है. सिंगल लाइन कमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हैश लगाना है. डन. अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लगाना चाहते हैं तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कीवर्ड 3 टाइम्स यूज करने पड़ेंगे. चाहो तो ये यूज करो, चाहे डबल वाले ही कर लो, दोनों में से कोई भी कर सकता है, लेकिन कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 3 टाइम्स. कितनी बार लिखने पड़ेंगे, 3 टाइम्स. कैसे? जैसे मैं एक कमेंट लिख के दे देता हूं, यहां लिख देता हूं, दिस इज अ single line comment, and I have written here this is a multi-line comment. It is in more than one line. ये देखिए, तो ये मल्टी लाइन कमेंट है. ओके, बिकॉज इसका एंडिंग देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एंडिंग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट इज अ सिंगल लाइन कमेंट. ओके, सो वेदर यू हैव नीड टू राइट कमेंट्स इन मोर देन वन लाइन्स, यू कैन यूज मल्टी लाइन कमेंट लाइक दिस. फॉर कैसे यूज करोगे, 3 इन्वर्टेड कीवर्ड्स का यूज करते हो, डबल भी यूज कर सकते हैं. ओके, पेयर वाले भी यूज कर सकते हैं और सिंगल वाले भी यूज कर सकते हैं. डबल कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं. दैट्स हाउ वी कैन राइट अ कमेंट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन. ओके, नेक्स्ट क्या है, सॉरी, इट इज इंडेंटेशन. इट इज इंडेंटेशन. चलो, सो व्हाट इज इंडेंटेशन? व्हाट इज इंडेंटेशन? इंडेंटेशन इज जस्ट अ स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम. कोई भी प्रोग्राम जो होता है, उस प्रोग्राम के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, तो उसकी जो इंटीग्रेंट्स है, उनके जो इंटरनल स्टेटमेंट्स है, उसको जो मेन जो ब्लॉक ऑफ कोड का जो हेडिंग है उससे रिलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अंदर पुश कर देते हैं.
ठीक है ना। सो अ ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट विद इंडेंशन एंड एंड्स विद फर्स्ट अनइंडेंटेड लाइन। ओके, जो क्या करती है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसमें क्या होता है, एक इंडेंट, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन सिखाई थी, तो मैंने लिखा था डेफिनेशन, और मैंने यहाँ लिखा था नाम किसी का, जो फंक्शन का नेम होगा, और मैंने यहाँ पर से स्टार्ट किया था x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू। सो ये जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। इट मींस दैट दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन, कि ये सारे स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, डेफिनेशन रिलेटेड है। लेट सपोज मैंने यहां लिख दिया x इक्वल्स टू, इट मींस अब ये जो x है ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये x इससे रिलेटेड नहीं है, ये x अलग है। इट मींस जब ये एग्जीक्यूट होगा तो ये सारे एग्जीक्यूट होंगे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज ये इसका इंटरनल पार्ट नहीं है। इट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। डन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम टैब्स का यूज करते हैं, हम टैब देते हैं, हाँ, टैब कैरेक्टर कीबोर्ड पे होता है और टैब कैरेक्टर का यूज करते हैं। व्हाट इज अ वेरिएबल, वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ओके, अब यहां पर जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, तो वो वेरिएबल पाइथन के अंदर आप जो वैल्यू असाइन करते हैं तो डायरेक्टली आप असाइन करें, आपको कुछ नेमिंग कन्वेंशन देने की जरूरत, मतलब उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अदर लैंग्वेजेस जितने भी हैं उनमें पहले डिफाइन करना होता है कि व्हाट वैल्यूज टू बी असाइंड इन द फॉलोइंग वेरिएबल, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू असाइन करनी होती है। ये दूसरी लैंग्वेजेस में परफॉर्म होता है कि वहां पहले बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल है और ये किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। पाइथन में ऐसा नहीं है। ओके, सो आप किसी भी वेरिएबल को यूज कर ले और कोई भी टाइप की वैल्यू उसको असाइन करते हैं, वो अपने आप को उसके अनुसार क्या कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू असाइन। ओके, just write the name of the variable, assign, use assignment operator and write the value, and this value will be assigned to the number. Okay, और assigning method कैसे होता है, एक्चुअली रेफरेंसिंग मेथड से यहाँ पर क्या होता है, असाइनिंग होता है ना। डेटा असाइन कैसे होता है, लेट सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, सो द मेमोरी के अंदर क्या होगा, 10 मेमोरी यहाँ इनिशियलाइज कर दी जाएगी, और x एक अलग से होगा जो इसको क्या करेगा, रेफरेंस करेगा, क्या करेगा, इसको रेफरेंस करेगा। लेट सपोज आई राइट y इक्वल्स टू 10, अगेन न्यू स्पेस क्रिएट ने करके ये y भी क्या करेगा, इसको रेफरेंस करेगा। तो ये इंटेलिजेंट टेक्निक यूज की जाती है ताकि डेटा को, जो स्पेस को है वो बचाया जा सके, मेमोरी कम से कम यूज में हो और ज्यादा से ज्यादा वेरिएबल्स को बनाया जा सके। तो ये एक अच्छा मेथड दे रखा है पाइथन के अंदर कि वहां पर वैल्यूज सेम होने पर, वैल्यू सेम होने पर नया वेरिएबल बनाने से अच्छा है आप वेरिएबल्स के रेफरेंस दे दीजिए। ओके, लेट सपोज हमने लिखा x इक्वल्स टू 12 लिख दिया, सो अगेन अब 12 तो डिफरेंट है तो ये हो जाएगा और ये रेफरेंस यहां से हटके और यहां चले जाएगा। अगेन कोई वेरिएबल अगर 12 को इंडिकेट करेगा तो सेम इसको रेफरेंस करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो दिस इज द वेरिएबल। ओके, सो हाउ टू declare a variable, just write the name of the variable and assignment operator and then use that data to assign it. Let's suppose I write here x equals to 10, सिंपल है। और प्रिंटिंग कैसे आएंगी, प्रिंटिंग में सीधा आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे x, आप लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिख देंगे x, तो ये x की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, इजी है, ठीक है ना। मल्टीपल को असाइन, एक से ज्यादा वेरिएबल को असाइन कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं हम। अभी सेशन अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है, so let's suppose I want to assign multiple name variables, let's suppose a b c d and 10 20 30 40 ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये किसको मिल जाएगा, रिस्पेक्टिवली वैल्यूज किसको मिल जाएगी, यहाँ वेरिएबल्स को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ a की वैल्यू क्या मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू क्या मिलेगी। ऐसे असाइन भी वैलिड है, ये भी वैलिड असाइनिंग है। ओके, क्लियर ना, ये भी वैल्यू असाइन, ऐसे असाइनिंग भी की जा सकती है। डन, चलिए अब वैल्यूज को चेंज कैसे किया जाना है, सिंपल है। आप वेरिएबल को, जैसे x इक्वल टू 10 लिखा था, मैंने अगली बार x इक्वल टू 20 लिख दिया, वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। ओके, सो ये कोई बिग डील नहीं है, इजी है। ओके, और यूज कैसे करना है, सिंपल, जैसे आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी बराबर z, अब ये क्या हो गया, इन तीनों की एडिशन हो जाएगी, वो किस में चली जाएगी, z में चली जाएगी, देन आफ्टर यू विल प्रिंट दिस z। डन, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर ना। जो रूल्स हमारे नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल्स के हैं वो हमारे आइडेंटिफायर्स के हैं, दोनों सेम ही हैं। लिटरल्स मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, लिटरल्स अभी नहीं पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं ऑपरेटर्स, है ना, क्या पढ़ते हैं, ऑपरेटर्स।
सो ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर क्या पढ़ा था मैंने? अरिथमेटिक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर पढ़ा था हमने? अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें हमने क्या पढ़े थे? असाइनिंग पढ़ा था, हमने एडिशन पढ़ा था, है ना? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जिसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंट, जो कि क्या है? रिमाइंडर, और ये है हमारा फ्लोर डिवीजन, ये हमने पढ़े थे, ठीक है ना? तो प्लस अब ये कौन से ऑपरेटर है सारे के सारे? ये सारे ऑपरेटर किस टाइप के बताइए? ये सारे के सारे किस टाइप के भी हैं? बाइनरी है। ओके, बाइनरी कैसे पता चलता है? लिखा हुआ प्लस 2 और 3 ऐसे ही लिखेंगे हम। तो देखो यहाँ पर ऑपरेंड कितने हैं? 2, और ऑपरेटर कितना है? सिंगल। तो ऑपरेटर, ऑपरेंड की संख्या के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं इसको? बाइनरी, यूनरी और टर्नरी, 3 भागों में बांटते हैं। और अभी अभी तक मैंने सिर्फ आपको 2 ही पढ़ा है। कौन से? बाइनरी एंड यूनरी। टर्नरी पे अभी तक हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है ना? तो आपको 2 ही ध्यान रखने हैं अभी तक, बाइनरी और टर्नरी, ठीक है ना? अब इस और एक और है हमारा, एक ऑपरेटर और है, उसको भी लिख दीजिए आप, वो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इट इज द पावर। ओके, सो x टू द पावर ऑफ y, ऐसे अगर लिखा हुआ है x, इसका मतलब क्या हो गया? कि x की पावर y, ये मतलब है इसका। ध्यान से देखो, समझ में आया? x टू द पावर y इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये तो सब आपको आते ही हैं, ये वाले सारे, ठीक है ना? 2 + 3 5 हो जाते हैं, 2 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिवाइड करो 10/2 5 हो जाएगा। रिमाइंडर निकालो 10/3 1 निकलेगा। फ्लोर डिवीजन, अच्छा फ्लोर डिवीजन में आपको बहुत ध्यान रखना है कि फ्लोर डिवीजन में वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना? फ्लोर डिवीजन के अंदर क्या करोगे आप? लेट सपोज मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको इसको। फ्लोर डिवीजन में थोड़ा ध्यान रखना आप, ठीक है ना? फ्लोर डिवीजन में क्या करोगे? फ्लोर डिवीजन आपने किया है, देखिए जैसे मैंने लिखा x = 12, y = मैंने लिखा 5, लिख दिया। अब एक्चुअली में अगर मैं सिंपल कहूं x / 5, तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए नॉर्मली कहें तो 5 × 2 = 10 और 25 4 = 20, ये हमको वैल्यू मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब मैंने लिखा फ्लोर डिवीजन, तो एक्चुअली मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 2। ये पीछे की संख्या जो होगी ना, ये क्या हो जाएगी? हट जाएगी। समझ में आया? इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? फ्लोर डिवीजन। मतलब पॉइंट के पीछे का जो नंबर है ना, वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और पॉइंट के आगे जो नंबर लिखा हुआ है इंटीजर नंबर, वो हमको मिल जाएगा। डन? क्लियर ना? सबको समझ में आ गया? और एक और क्वेश्चन है, जैसे x = 2, क्या देगा रिजल्ट हमें? ये क्या रिजल्ट देगा? 2 की पावर 3 है, इट इज 8। क्या रिजल्ट देगा मुझे? 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। तो ये मुझे क्या रिजल्ट देगा? 8 रिजल्ट दे देगा। क्लियर है ना? डन? सो नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या कौन सा ऑपरेटर है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कि इट इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सो अब ग्रेटर देन का यूज कैसे करेंगे? दिस इज ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इक्वल टू। अब सिंगल इक्वल लगाओगे तो क्या बन जाएगा? वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, ठीक है ना? क्लियर? जैसे मैं लिखा x y x y x y, मैंने कहा x = 10 और y = 20। अब बताइए क्या आंसर आएगा? अब आंसर इसका क्या मिलेगा? देखो, मुंह खुले वो मोटा, तीर लगे वो छोटा, ऐसे याद रखो। तो जो मुंह खुला हुआ वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो y क्या बड़ा है? क्या 20, x की वैल्यू क्या है? 10। तो नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, व्हाट इज अ लॉजिकल ऑपरेटर? Logical operator depends on logics. Logics are and, or, not. Okay, and, or, and not. Okay, so it depends, the logics that depends on logics, which is and, or not.
एंड अगेन इट इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? बाइनरी ऑपरेटर होता है। और ये क्या वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा? एक एक्स वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और एक वाई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ये दो जो है हमारे पास ऑपरेटर, ये दोनों किस टाइप के हैं? बाइनरी टाइप के हैं। जबकि ये जो ऑपरेटर है ये यूनरी टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? यूनरी टाइप का ऑपरेटर है। दिस इज अ बाइनरी टाइप ऑपरेटर, दिस इज अ यूनरी टाइप ऑपरेटर। ओके, ठीक है ना। अब ये ऑपरेटर बाइनरी है, इट मींस एक्सेप्ट टू ऑपरेंड्स व्हिच इज एक्स एंड वाई। ओके, अब इनकी वैल्यू जो होगी, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलेगी आपको। किसके रूप में? ट्रू या फॉल्स के रूप में मिलेगी। ओके, लेट्स सपोज इसके अंदर वैल्यूज में ट्रू या फॉल्स नहीं लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है। तो रिमेंबर, अगर यहां पर 0 लिखा हुआ है इट मींस इंडिकेट एफ, और इसके अलावा कोई भी नंबर है 1 2 3 कुछ भी होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा? सॉरी, वो इंडिकेट करेगा ट्रू को। डन। तो वैसे बेसिकली आपको यही मिलेंगे। इट मींस वेयर वी आर यूजिंग दिस एंड लॉजिकल ऑपरेटर, एक्चुअली वी आर यूजिंग, मोस्टली वी आर यूजिंग दिस एंड ऑपरेटर यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ में हम किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करेंगे, बिकॉज the only one operator which can gives us true or false for a desired equation। कोई भी प्रॉब्लम के लिए ट्रू और फॉल्स रिजल्ट जनरेट कौन करता है? कंपैरिजन ऑपरेटर जनरेट करते हैं। तो यहां पर कुछ सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा। लेट सपोज वो कह रहा है, ऐसे कोई सिनेरियो होगा, ये सिनेरियो देखिए। इसमें यहां पर हमने यहां पर जो यूज किया है, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। जबकि यहां कौन सा ऑपरेटर यूज किया गया है? ये लॉजिकल ऑपरेटर है। तो मोस्टली केसेस में आपको यही सिनेरियो देखने को मिलेगा, वेयर देयर आइदर साइड्स जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर से होगी, और मिड में क्या होगा? हमारे जो एंड या और लिखा होगा। नॉट का यूज डायरेक्टली करते हैं। नॉट इज फॉर नेगेशन, ये ट्रू को फॉल्स पे कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है। ओके, सो द रूल फॉर एंड, बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये सिंपल है, रूल याद रख लेना इसे। और के लिए जस्ट उल्टा कर दीजिए, बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। फिर से एंड के लिए होगा बोथ ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स, यहां होगा बोथ फॉल्स देन फॉल्स अदरवाइज ट्रू। सो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट। ओके, ये लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है। द नेक्स्ट वन इज बिटवाइज ऑपरेटर। वी हैव लर्न व्हाट इज अ बिटवाइज ऑपरेटर। इसके बारे में अच्छी सी बात हमारे बीच में हो चुकी है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बिटवाइज ऑपरेटर डिटेल में पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं फिर से बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है। एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं वो एक्चुअली वर्क करते हैं बिट्स के ऊपर, विच इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट of memory, or you can say that it is for processing. Okay, so binary operator acts on operands as if they were strings of binary digits। वो binary digits की strings, string का word हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर string word जब भी आता है, लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज होगी उसमें स्ट्रिंग वर्ड का मतलब यही होता है कि ग्रुप ऑफ। अब ग्रुप ऑफ व्हाट? अब यहां आगे लिखा होगा स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ओके, तो ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो यहां पर स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा? ग्रुप ऑफ होगा। ठीक है ना, समझ लेना ध्यान से। ठीक है ना। सो एक वर्ड होता है तो उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे बोल सकते हैं हम। ओके, और ये ऑपरेट कैसे करता है? बिट बाय बिट करता है। क्या करता है ये? बिट बाय बिट करता है। और इसके जो ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेटर मैंने आपको सिखाए थे। एक था एंड ऑपरेटर, एक था और ऑपरेटर, एक था नॉट ऑपरेटर, है ना। नॉट ऑपरेटर को हम नेगेशन से बनाते हैं, जो हम ये टाइल्ड बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? टाइल्ड है, नेगेशन से हो गया। फिर हमने एक्सोर का यूज किया था, हमने एक्सोर, हमने ये एक्सोर बन गया हमारा ऑपरेटर। फिर हमारे पास जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है, इन शिफ्टिंग ऑपरेटर की बात भी की थी, जिसमें हमने राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट की बात भी की थी। आई थिंक वो लेक्चर आपने देखा होगा, उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे शिफ्टिंग की जाती है, एक बिट आगे कर दी जाती है, जितनी आपने उसमें आर्ग्यूमेंट्स दिए उतनी बिट्स आगे कर दी जाती है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर इज एक्चुअली यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 5, सो दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, इसके कितने कितने डिफरेंट हो सकते हैं? ये हो सकता है जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है उनके सबके अवेलेबल है ना, ऑलमोस्ट। क्या कहेंगे?
बी माइनस इक्वल्स टू, जैसे बी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जैसे बी लिख दिया, यहाँ पर भी बी ले लीजिए आप, ताकि एक ही एग्जाम्पल रह जाएगा, ठीक है ना। जैसे बी डिवाइड इक्वल्स टू, बी रिमाइंडर इक्वल्स टू, बी फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, बी, बस इतना ही है। आगे क्लियर ना। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है ना, लमसम अर्थमेटिक सारे ऑपरेटर्स को उनमें यूज किया जा सकता है। आप इसके साथ में दूसरे ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। देखो आप बी इक्वल्स टू ये भी कर सकते हैं, आप इनको भी यूज कर सकते हैं, जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं इनको भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे अब और कौन से रह गए, यही है ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स को कर सकते हैं। इसमें आप लेस देन जो है ग्रेटर देन का भी यूज कर सकते हैं। सारे ऑपरेटर हैं, लमसम अच्छे ऑपरेटर्स हैं, इनमें सबको यूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक ही होता है, जब हम लिखते हैं कि हम लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू बी, ये मैंने लिखा है सिंटेक्स। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि a इक्वल्स टू a प्लस बी। तो हम a इस पूरे स्टेटमेंट को ना लिख के हम इसका शॉर्ट वर्जन लिख देते हैं। इसी जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको शॉर्ट हैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट हैंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट हैंड्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, a इक्वल्स टू a प्लस बी, कंडीशन क्या है, इक्वल टू के दोनों तरफ, जो सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर के दोनों साइड में क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे। तो ये जितने भी ऑपरेशन है, होगा क्या, बस ये ऑपरेशन हुआ, इसको असाइन कर देगा इसमें। ओके, जैसे ये है तो पावर होगी, पावर असाइन हो जाएगी बी में। लेट सपोज दिस इज मल्टीप्लाई होगा और ये क्या होगा, बी में असाइन हो जाएगा। यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, वो किस में असाइन होगा, बी में असाइन हो जाएगा। दैट्स व्हाई ऐसे ये यूज किए जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्पेशल ऑपरेटर। व्हाट इज अ बिटवाइज, सॉरी स्पेशल ऑपरेटर पढ़ेंगे। अब स्पेशल ऑपरेटर क्या होते हैं, स्पेशल एक्चुअली जो सिंपल ऑपरेटर्स हैं, जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, उनकी जगह पर हम कोई स्पेशल ऑपरेटर का यूज करेंगे, जो अलग से स्पेशल काम करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे मेंबरशिप करने के लिए, मेंबरशिप चेक करने के लिए, आइडेंटिटी चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो इसमें मैंने आपको 4 बताए थे। एक बताया था इज, सेकंड वाज इज नॉट, एक बताया था इन, और एक बताया था नॉट इन। ओके, सो लेट सपोज ये तो कंपेयर करने के लिए होता है। आइडेंटिटी चेक करता है, ये क्या चेक करता है, आइडेंटिटी, दैट दिस वैल्यू इज जस्ट सेम एज दिस। ओके, ये वैल्यू इसकी जस्ट सेम है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। ओके, तो जैसे लेट सपोज मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10, तो होगा क्या, मेमोरी के अंदर, मेमोरी में 10 हो जाएगा और ये x और y दोनों को एक जगह रेफरेंस कर दिया जाएगा। अब मैं अगर पूछ रहा हूं उससे, मैं प्रोग्राम में लिख रहा हूं x इज y, तो बताइए क्या रिटर्न करेगा ये हमेशा मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, बिकॉज बोथ आर इंडिकेटिंग अ स्पेसिफिक वैल्यू। एक ही वैल्यू को दोनों इंडिकेट कर रहे हैं, इट मींस ये दोनों आइडेंटिकल है। क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल हो गए, इट मींस ये आइडेंटिटी क्या देगी इसकी, ट्रू देंगे ये आइडेंटिटी। समझ में आया। लेट सपोज आई हैव असाइन 10.01। ओके, सो 10.01 लिखा मैंने, तो अब चेंज क्या हो गया, एक और बनेगा 10.01, x इंडिकेट करेगा 10.01 को। अब ये क्या रिटर्न करेगा मुझे, फॉल्स, नॉट ट्रू। क्यों फॉल्स रिटर्न किया, बिकॉज दोनों की दिख रहे हैं आपको एक जैसे ही है, लेकिन दोनों की आइडेंटिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको आइडेंटिटी का। क्या करना है, बहुत ही इजी है, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, बस एक क्योट लगा दिया मैंने। अब ये एक्चुअली क्या बन गया है, एक कैरेक्टर बन गया है। क्या बन गया है, एक कैरेक्टर बन गया है। और ये एक्चुअली क्या है, एक नंबर है, या कह सकते हैं डिजिट है। इट इज अ डिजिट, इट इज अ डिजिट, इट इज अ कैरेक्टर। अब मैं अगर ये यूज करता हूं तो अगेन मुझे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों, भले ही आपकी नजर में दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन रियल में ये एक जैसे नहीं है, बिकॉज वी कैन मल्टीप्लाई दिस 10 by 2 बट वी कांट मल्टीप्लाई दिस 10 by 2। ओके, इस 10 से मल्टीप्लाई 2 को करूंगा तो मुझे एरर जनरेट होगा, यहां 10 से मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, क्योंकि ये एक डिजिट है और डिजिट पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। और ये क्या है, एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ओपन जो अर्थमेटिक ऑपरेशन इस पे नहीं किए जा सकते। ओके, अब एक और है इसके अंदर, इज नॉट। इज नॉट क्या करता है, इज से जो भी रिजल्ट आएगा उसको नेगेशन में कर देना। लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर इज की जगह पर, अगर मैंने यहाँ पर इज नॉट का यूज किया होता,
लेट्स सपोज आई यूज इज नॉट, सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, इससे क्या रिजल्ट आ रहा था, फॉल्स, और ये नॉट क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डन, क्लियर हो गया ना सबको। एंड द लास्ट वन इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर एक्चुअली क्या काम करता है कि वो ये देखता है कि जो उसको रेंज दे रखी होती है उस रेंज के अंदर स्पेसिफिक वैल्यू है या नहीं है। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर ये इंश्योर करता है कि बोथ द वैल्यूज आर आइडेंटिकल और नॉट, बोथ आर स्टोर्ड एट अ सेम प्लेस और नॉट, ओके। और मेंबरशिप ऑपरेटर तो ये देखता है कि ये फॉलोइंग है, जैसे लेट्स सपोज देयर इज अ क्लास and in this class there are 40 students, okay. Let's suppose I want to search Meghna, let's suppose Meghna नाम की बच्ची है और मुझे सर्च करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, इन का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा वहां जाकर इज देयर इज अ मेघना स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो ये देखो इन का यूज हुआ, इन दिस क्लास मतलब देयर आर अमंग 40 स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू सर्च द नेम द स्टूडेंट मेघना in these 40 students, so that's why we are using in there for that, okay, okay. सो इनके लिए क्या करेंगे, सिंपल है। इनके लिए क्या करो आप, जो मैंने लिस्ट बताई थी आपको, मैंने कहा एक्स इन लिस्ट, सिंपल लिख दिया। अब मैंने कहा लिस्ट, लिस्ट की वैल्यू क्या क्या दे दी मैंने, 1 2 5 6 9, और x की वैल्यू क्या दे दी मैंने, 2 दे दी। तो बताइए ये आंसर क्या देगा मुझे, ट्रू। क्या ये आंसर देगा मुझे, ट्रू देगा। क्यों ट्रू देगा, क्योंकि 2 इस लिस्ट के अंदर है, ये देखो सेकंड प्लेस के ऊपर है। लेट सपोज मैंने लिखा 12, क्या ये 12 इस लिस्ट में है, नो, सो इट विल गिव मी अ फॉल्स, इट मींस गिव मी अ फॉल्स। और मोस्टली मैंने क्या बताया, ट्रू फॉल्स वाले जितने भी क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स नन, ये तीन जो भी ऑपरेटर देते हैं उनका मोस्टली कहां यूज होता है, फॉर, इफ और व्हाइल। इन तीन जगह पर किसका यूज होगा, ट्रू फॉल्स और नन। मतलब जो भी ऑपरेटर आपको क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, नन दे रहा है, तो गारंटेड वो क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए, ए फॉर, इफ और व्हाइल का यूज करना ही होगा। डन, तो इनमें ही इनका यूज किया था और कहीं किया नहीं जा सकता। क्लियर हो गया सबको, डन, इज इट क्लियर।